بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اگر تم نے آدھے گھنٹے تک خود کو بچا لیا تو میں تمہیں $500 دوں گی، اور خود کو نہ بچا سکے تو میرے ہاتھوں لہو لہان بھی ہوگے اور رقم بھی صرف $100 حاصل کرو گے۔ وہ زبردست شکاری تھی، گھڑ سواری میں اسے مہارت حاصل تھی۔ میدان میں آنے والے حاجت مند آدھے گھنٹے تک خود کو بچا نہیں پاتے تھے، اسے مار کھاتے کھاتے اپنے ہی لہو میں ڈوب جاتے تھے۔ وہ پرسنل سیکرٹری ایسے خونی مناظر نہیں دیکھ سکتا تھا، نظریں پھیر لیتا تھا۔ اب تک میدان میں ایک ہی شخص ایسا آیا تھا جس نے خود کو آدھے گھنٹے تک اس کے ظلم سے بچائے رکھا تھا۔ میڈم سلطانہ آفندی نے خوش ہو کر اسے $500 دیے اور انعام دیتے ہی اچانک اس کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ اپنی شکست برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے آدمیوں نے اس بازی جیتنے والے کو باندھ دیا تھا۔ سلطانہ نے جی بھر کے پٹائی کرنے کے بعد اسے اور $500 دیا اور حکم دیا، چلے جاؤ یہاں سے، آئندہ کبھی جزیرے میں نظر نہ آنا۔ اگر میرے غلاموں نے تمہیں دیکھ لیا تو گولی مار کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ میں جسے شکار کرتی ہوں اس کی لاش پولیس والوں کو بھی کبھی نہیں مل سکتی۔ میں پرسنل سیکرٹری کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے چونک گیا۔ انٹرکام سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے فوراً ریسیور اٹھا کر کہا، یس میڈم۔ میڈم سلطانہ آفندی کی پتھر جیسی آواز سنائی دی، میں اجازت نامہ بھیج رہی ہوں، اس کے مطابق سفید عربی گھوڑے کی قیمت ادا کر دو۔ میری مراد پوری ہو گئی۔ میں نے اس کی آواز سن لی۔ کم بخت ایسے بول رہی تھی جیسے فون کے ذریعے سننے والے کے دماغ میں پتھر مار رہی ہو۔ میں نے پرسنل سیکرٹری کے پاس سے پرواز کی اور اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے کچھ بے چینی سی محسوس کی۔ آخر زہریلے سانپوں اور درندوں کے ساتھ کھیلنے والی عورت تھی، یقیناً مضبوط دماغ اور مستحکم قوت ارادی کی مالک تھی۔ اس کی چھٹی حس نے کہا، کوئی غیر معمولی بات ہے۔ میں نے اس کے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، بھلا غیر معمولی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا میں ایک کمزور عورت کی طرح اپنے اندر کبھی کمزوری محسوس کر سکتی ہوں؟ میں تو شیرنی ہوں۔ وہ خوش ہو گئی، مسکرانے لگی۔ میں نے اسے بہلا دیا تھا۔ وہ ایک ہینگنگ چیئر پر بیٹھی آہستہ آہستہ جھول رہی تھی۔ قریب ہی ایک ادھیڑ عمر کی عورت ادب سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے میڈم کی طرف ایک لیٹر پیڈ بڑھایا۔ اس لیٹر پیڈ کا کاغذ میڈم کے لیے خاص طور پر تیار کیا جاتا تھا۔ اس کا رنگ ہلکا آسمانی ہوتا تھا اور اس میں سے بھینی بھینی خوشبو ابھرتی تھی۔ اس نے پیڈ پر لکھا تھا، سفید عربی گھوڑے کی قیمت $6000 ادا کر دی جائے۔ وہ اجازت نامہ بھی تھا، ادائیگی کے لیے رسید بھی تھی، تاکہ دولت کی آمد و رفت کا حساب رہے۔ میں نے اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما لیا۔ اس کے ہاتھ سے دوسرا اجازت نامہ لکھوایا۔ اس نے لکھا، ایک بریف کیس میں $5 لاکھ رکھ کر اسے اسسٹنٹ سیکرٹری کے حوالے کرو اور اسے ہدایت کرو کہ وہ یہ رقم لے کر کار میں ساؤتھ بار کے سامنے انتظار کرے۔ ایک شخص آ کر یہ الفاظ ادا کرے گا، دولت صرف موت کے بعد ساتھ نہیں چھوڑتی، زندگی میں بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ایسے الفاظ ادا کرنے والے کو وہ بریف کیس دے دیا جائے، اس سے اور کوئی بات نہ کی جائے۔ وہ بریف کیس دے کر چپ چاپ وہاں سے چلا آئے۔ اس نے یہ تحریر لکھی، نیچے دستخط کیے، پھر اسے ادھیڑ عمر کی عورت کے حوالے کر دیا۔ وہ ادب سے الٹے پاؤں چلتی ہوئی خوابگاہ سے باہر آئی۔ باہر چیتے ٹہل رہے تھے جو اسے پہچانتے تھے۔ وہ آہنی سلاخوں والی دیوار کے پاس آئی، دروازے کے تالے کو کھولا، پھر باہر آ کر اسے دوسری طرف سے لاک کر دیا۔ وہاں سے چلتی ہوئی محل کے مختلف حصوں سے گزرتی ہوئی پرسنل سیکرٹری کے پاس آئی اور وہ 2 رسیدیں اس کے سامنے پیش کر دیں۔ سیکرٹری نے دوسری رسید کو پڑھ کر تعجب سے سوچا، $5 لاکھ اتنے پراسرار انداز میں کیوں ادا کیے جا رہے ہیں؟ وہ سوچ سکتا تھا، شبہ بھی کر سکتا تھا، مگر میڈم کے تحریری حکم کے بعد کوئی سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جہاں بیٹھ کر دفتری کام کرتا تھا وہاں اس کے پیچھے ایک بڑا سا آہنی دروازہ تھا۔ وہ ایک تجوری کا دروازہ تھا۔ تجوری کا سائز ایک بڑے کمرے کے برابر تھا۔ اس نے ایک رجسٹر میں دونوں رسیدوں کا حوالہ دے کر رقم کی تفصیلات درج کیں، پھر اس آہنی دروازے کے پاس جا کر اس کے مخصوص نمبر ڈائل کیے۔ اس کے بعد دوسری طرف منہ گھما کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ادھیڑ عمر کی عورت دروازے کے پاس آئی۔ اس نے بھی چند مخصوص نمبر ڈائل کیے، پھر ایک بٹن دبایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ پرسنل سیکرٹری اور ادھیڑ عمر کی عورت دونوں ہی سلطانہ آفندی کے بھروسے کے ملازم تھے۔
उनमें से कोई तन्हा दरवाज़ा नहीं खोल सकता था। दोनों को एक दूसरे के मखसूस नंबरों की तरतीब मालूम नहीं होती थी। वो खुले हुए दरवाजे से अंदर आए। चारों तरफ दीवारों पर बड़े बड़े रैक बने हुए थे। एक एक रैक में ऊपर से नीचे तक नोटों की भारी गड्डियां रखी हुई थीं। दूसरी दीवार के एक रैक में उसी तरह ऊपर से नीचे तक हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। यूं लगता था जैसे कोई अली बाबा 40 चोरों के खजाने तक पहुंच गया हो। एक रैक में इस दौलत, ज़मीन और जायदाद से ताल्लुक़ रखने वाली दस्तावेज़ात रखी हुई थीं। सेक्रेटरी ने अरबी घोड़े की अदायगी के लिए $6000 निकाल कर एक लिफाफे में रखे। फिर एक ब्रीफ केस में $5 लाख रखकर उसे बंद किया। उसके बाद बाहर आ गया। उसने एक बटन को दबाया तो दरवाज़ा पहले की तरह खुद ब खुद बंद हो गया। उसे अपने मखसूस नंबरों की तरतीब से लॉक करने के बाद वो कुर्सी पर आ गया। उस औरत ने भी उसे अपने मखसूस नंबरों से लॉक किया। फिर वो वहाँ से चली गई। पर्सनल सेक्रेटरी ने अपने असिस्टेंट को तलब किया और कहा, यह ब्रीफ केस ले जाओ और साउथ बार के सामने अपनी गाड़ी में बैठे रहो। एक शख्स तुम्हारे पास आएगा, मखसूस कोड वर्ड्स अदा करेगा। तुम ये ब्रीफ केस उसके हवाले करके चुपचाप चले आना। उस शख्स से कोई बात ना करना। उसने अपने असिस्टेंट को मखसूस कोड वर्ड्स याद करवा दिए। वो ब्रीफ केस लेकर रवाना हो गया। जब वो महल से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा तो मैंने उस गाड़ी का रंग, मॉडल और नंबर मालूम किया। फिर माइटी पाशा के पास आ गया। वो एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में ऐसे जवानों के साथ बैठा हुआ था जो सबके सब बॉडी बिल्डर्स थे। वो उनसे कह रहा था, मैं 1 माह के लिए तुम सब की खिदमत हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए तुम में से हर जवान को $10,000 दूंगा। एक जवान ने कहा, फरहाद साहब के काम आना हमारी खुशकिस्मती है और फिर $10,000 हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे जवान ने कहा, हम इनके बेटे और बहू के लिए जान की बाजी लगा देंगे। तीसरे ने कहा, तुम 1 माह की बात कर रहे हो, हम जिंदगी इनके लिए वक्फ करने को तैयार हैं। क्या फरहाद साहब हमसे गुफ्तगू करना पसंद करेंगे? मैंने पाशा के मातहत की ज़ुबान से कहा, मैं फरहाद अली तैमूर तुम सब से मुखातिब हूँ, अभी तुमसे बातें करूँगा। पहले माइटी पाशा को यह बता दूं कि साहिल पर साउथ बार के सामने एक नीले रंग की कार खड़ी हुई है। उसका नंबर TP 707808 है। उस कार की स्टीयरिंग सीट पर एक शख्स बैठा हुआ है। तुम उसके पास जाकर ये मखसूस कोड वर्ड्स अदा करो। दौलत सिर्फ मौत के बाद साथ नहीं छोड़ती, जिंदगी में भी साथ छोड़ देती है। मिस्टर पाशा, तुम्हारी ये बात सुनकर वो शख्स तुम्हें एक ब्रीफ केस देगा। तुम वो ब्रीफ केस लेकर उससे कुछ कहे सुने बगैर चले आओ। पाशा ने कहा, जनाब आपने तजस्सुस पैदा कर दिया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ उस ब्रीफ केस में क्या है? उसमें $5 लाख हैं। ये सुनते ही सबके सब हैरानी से उठकर खड़े हो गए। पाशा मारे हैरत के खड़ा भी ना हो सका। मैंने कहा, वक्त ज़ाया ना करो, फौरन साउथ बार के सामने जाओ। वो उछल कर खड़ा हो गया, दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मैंने दूसरों को मुखातिब करते हुए कहा, शायद तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे सामने माइटी पाशा का मातहत बोल रहा है। ये फरहाद नहीं है। ज़रा गौर करो तो इसकी आवाज़ और लबो लहजा बदला हुआ महसूस होगा। एक जवान ने कहा, यह दुरुस्त है, फिर भी हमारे लिए यह बिल्कुल अनोखी सी बात है कि एक शख्स दूसरे के दिमाग से और ज़ुबान से बोल रहा है। दूसरे ने पूछा, क्या आप हमारे दिमाग में आएंगे? मैं बारी बारी उनके दिमागों में पहुंचकर उनसे अजीब अजीब सी हरकतें करवाने लगा। वो हैरत और मुसरत का इजहार कर रहे थे। मैंने कहा, तुम सब यहीं इंतज़ार करो, मैं माइटी पाशा की खबर लेकर आता हूँ। फिर मैं उस सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंचा जो साउथ बार के सामने इंतज़ार कर रहा था। मैं माइटी पाशा के दिमाग में नहीं गया। हमारे दरमियान ये तय हो चुका था कि सुपर मास्टर को अपने मंसूबों से दूर रखने के लिए उसे पाशा के दिमाग से भी दूर रखना होगा। लिहाजा फ़िलहाल मैं भी पाशा से ख्याल ख्वानी के ज़रिए राबिता कायम नहीं करूँगा। 10 मिनट के बाद ही वो बार के सामने पहुँच गया। उसने सेक्रेटरी की कार को पहचाना, फिर उधर आने लगा। मैं सेक्रेटरी की नज़रों को पाशा से हटाए रखना चाहता था ताकि वो किसी मौके पर उसे पहचान ना सके। उसने करीब आकर वही कोड वर्ड्स दोहरा दिए। सेक्रेटरी ने साथ वाली सीट पर रखा हुआ ब्रीफ केस उठाकर उसे थमा दिया। वो मज़ीद कुछ कहे सुने बगैर उसे लेकर चला गया। मैंने थोड़ी देर तक उसे स्टीयरिंग सीट पर बिठाए रखा, फिर उसे कार स्टार्ट करवाकर आगे बढ़ा दी। इसके बाद उसे इधर उधर देखने का मौका दिया। उस वक्त तक माइटी पाशा जा चुका था। सेक्रेटरी परेशान होकर सोच रहा था, मैं ब्रीफ केस ले जाने वाले को देखना और पहचानना चाहता था, मगर मुझे क्या हो गया था? मैं उसे एक नज़र भी ना देख सका।
उसने कार एक जानिब रोक दी, उतरकर दूर तक नजरें दौड़ाने लगा। अव्वल तो पाशा वहां था ही नहीं, और अगर होता तो उसके सामने से गुजरता तब भी वो उसे पहचान ना पाता, क्योंकि उसने ब्रीफ केस देते वक्त उसे नहीं देखा था। वो परेशान होकर कार में बैठ गया, फिर महल की तरफ जाने लगा। मैंने सुल्ताना की खबर ली। वो गहरी नींद में थी, उसी तरह हैंगिंग चेयर पर झूलते झूलते सो गई थी। मैंने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाकर उसे $5 लाख की अदायगी का इजाज़तनामा लिखवाया था। अगर मैं उसके दिमाग को बाद में आज़ाद छोड़ देता तो उसे यकीन हो जाता कि यकीनन उसके साथ गैर मामूली बात हो रही है। वो झूलने वाली कुर्सी पर बैठे बैठे गायब दिमाग हो गई थी। वो उस अधेड़ उम्र की खास मुलाजिमा को बुलाकर इस सिलसिले में सवालात करती, तब उसे मालूम हो जाता कि उसने एक नहीं 2 रसीदें लिख कर दी हैं। जब वो खास मुलाजमा रसीदें लेकर गई तो मैंने सुल्ताना के दिमाग को आज़ाद नहीं छोड़ा, उसी तरह काबिज रहकर उसे हैंगिंग चेयर पर सुला दिया ताकि वो माइटी पाशा को रकम मिलने तक बेदार होकर कोई हंगामा ना करे। उस वक्त भी वो आराम से सो रही थी। मैं उन जवानों के पास आया। पाशा वहां ब्रीफ केस लेकर पहुंच गया था। चूंकि वो लॉक किया हुआ था, इसीलिए सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उसके मातहत की ज़ुबान से कहा, जब खाना सामने रखा हो तो किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इसका लॉक तोड़ दो। माइटी पाशा पहले ही बेचैन हो रहा था। मेरी बात सुनते ही उसने लॉक को तोड़ दिया। सब लोग करीब आ गए थे। ब्रीफ केस खुलते ही सब के सब चंद लम्हों के लिए साकित रह गए। वो बड़े बड़े बदमाश थे, रकम हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आज तक $5 लाख एक साथ नहीं देखे थे। एक ने नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां देखकर पूछा, क्या ये पूरे $5 लाख ही हैं? दूसरे ने कहा, मुझे तो 5 से ज़्यादा ही लगते हैं। तीसरे ने कहा, जितने भी हों हम हिसाब में कमज़ोर हैं, गिनने बैठेंगे तो सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाएगी। मैंने कहा, पाशा ब्रीफ केस खाली करके किसी को साहिल की तरफ अभी रवाना करो ताकि वो इसे समंदर में फेंक आए। सिर्फ ये ब्रीफ केस ही ऐसा है जिसके ज़रिए किसी को भी इस रकम का सुराग मिल सकता है। पाशा ने उसे खाली किया, फिर एक जवान से कहा, तुम इसे समंदर में फेंक आओ। उस जवान ने पूछा, फरहाद साहब, हमारे इस कॉटेज के बाहर एक गहरा कुआं है, क्या मैं इसे उसमें फेंक सकता हूँ? हाँ, फेंक आओ। वो खाली ब्रीफ केस लेकर चला गया। पाशा ने कहा, फरहाद साहब, मेरी हैरानी दूर कीजिए, आपने इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कैसे हासिल कर ली? जब मैं किसी के दिमाग में पहुंच जाता हूं तो क्या किसी की तिजोरी में नहीं पहुंच सकता? बेशक, इसमें क्या शक है, आप दुनिया की हर तिजोरी और हर खजाने तक पहुंच सकते हैं। आप किस कदर दौलतमंद होंगे इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। मैंने हंसते हुए कहा, भाई, मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं रहती। दुनिया के किसी भी छोटे बड़े बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं है। आप दुनिया के हर मुल्क में जाते हैं और आपका कहीं अकाउंट नहीं है। ताज्जुब है। अच्छा, समझ गया। आपके घर में, आपकी ज़ाती तिजोरी में दुनिया के कीमती हीरे जवाहरात ज़रूर होंगे। मेरा कोई घर नहीं है तो ज़ाती तिजोरी कहाँ से आएगी? पाशा ने पूछा, लेकिन ऐसा कब तक होगा? क्या आपके बीवी बच्चों को अपने घर और दौलत की ख्वाहिश नहीं होती? ख्वाहिश किसे नहीं होती? जब तक टेलीपैथी का इल्म हमारे साथ है, मुसीबतें भी हमारे साथ रहेंगी। ये बड़े ममालिक और ख़तरनाक तंजीमों के जुराइम पेशा अफराद हमें सुकून से कभी घर में नहीं रहने देंगे। हमारा घर होगा तो उसे खंडर बना दिया जाएगा, दौलत होगी तो लूट ली जाएगी। आपने कभी सोचा कि बुढ़ापे में क्या होगा? हाँ, सोचा है। मेरा दिमाग दूसरे बूढ़ों की तरह कमज़ोर होगा, मैं ख्याल ख्वानी नहीं कर सकूँगा। दुनिया का हर बूढ़ा अपनी औलाद के रहमो करम पर होता है। औलाद सादतमंद हो तो उसका बुढ़ापा आराम से गुजर जाता है, वरना वो किसी खैराती इदारे में खांसते खांसते और बलगम थूकते थूकते मर जाता है। लेकिन आपका बुढ़ापा दूसरों से मुख्तलिफ होगा। दुश्मनों को जैसे ही इल्म होगा कि आप बूढ़े और कमज़ोर हो चले हैं तो वो खुदा न खास्ता पहली फुर्सत में आपको ख़त्म कर देंगे। मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है। खुदावंद करीम ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, दोनों सादतमंद हैं, दोनों ही दलेर, ज़हीन और हर तरह के उलूम व फ़नून से माला माल हैं। मेरा ख्याल है औलाद अच्छी और मजबूत हो तो बूढ़े बाप के लिए इससे मजबूत किला कोई नहीं होता। वो जवान ब्रीफ केस कुएं में फेंक कर आ गया। मैंने कहा, पाशा, मैं इन तमाम जवानों के दिमागों में जाकर उन्हें अच्छी तरह समझ गया हूँ। ये मेरे वफादार रहेंगे। तुम अपने वादे के मुताबिक हर जवान को $10,000 अदा कर दो। जब मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ से जाऊँगा
तो उन्हें कुछ और रकम भी इनाम के तौर पर मिलेगी। माइटी पाशा ने $2 लाख अलग करके मेज़ पर रखते हुए कहा, तुम 20 जवान हो, 10,000 के हिसाब से बांट लो। एक जवान ने कहा, यह हमारी ज़िंदगी का पहला सौदा है, काम से पहले ही दाम मिल रहे हैं, बेहतर होता अगर हमें कोई काम बताया जाता। मैंने कहा, सुपर मास्टर माइटी पाशा के अड्डे को जानता है, वहाँ मेरे बच्चे ज़्यादा देर महफूज नहीं रह सकेंगे। ये बताओ, उनके लिए यहाँ महफूज जगह कौन सी हो सकती है? मुझे सिर्फ 1 रात के लिए जगह चाहिए। सिर्फ 1 रात के लिए क्यों? कल से वो सुल्ताना आफंदी के महल में रहेंगे। सब ने चौंक कर पाशा के मातहत को देखा, क्योंकि मैं उसी की ज़ुबान से बोल रहा था। पाशा ने कहा, जनाब, हम बात बात पर हैरान हो रहे हैं। ये मानते हैं कि टेलीपैथी के ज़रिए हैरत अंगेज़ कारनामे अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन मैडम सुल्ताना आफंदी निहायत मगरूर और जालिम औरत है। दोस्त हों या दुश्मन या कानून के मुहाफिज हों, कोई उसकी इजाज़त के बगैर उस महल के इहाते में कदम भी नहीं रख सकता। चूँकि वहाँ कोई कदम नहीं रख सकता, लिहाजा वहाँ मेरे बच्चे महफूज रहेंगे। उससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। एक जवान ने कहा, अगर एक ही रात की बात है तो वो दोनों इसी कॉटेज में रह सकते हैं। हम सब इस कॉटेज के बाहर जागते रहेंगे, एक चूंटी को भी इधर नहीं आने देंगे। एक ने पूछा, क्या उन्हें यहाँ छुपा कर लाया जाएगा? मैंने कहा, सुपर मास्टर इतनी देर में बहुत दूर तक जाल फैला चुका होगा। उसके आदमियों की नज़र माइटी पाशा पर होगी कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है और क्या क्या करता फिर रहा है। उसके अड्डे के आसपास निगरानी करने वाले मौजूद होंगे। मेरा बेटा और बहू ख्वाह किसी मेकअप में आए, अड्डे से निकलते ही पहचान लिए जाएंगे, लिहाजा वो छुप कर नहीं आएंगे। उन्हें कहीं से आने वाली अंधी गोलियों से बचाना तुम्हारा काम है। आप हम पर भरोसा करें, हम उन्हें बाहिफाजत यहाँ ले आएंगे। उन्होंने 3 वैगन कारें ले लीं, फिर पाशा के साथ उसके अड्डे पर पहुँच गए। जो होश में थी, एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसे याद नहीं था कि किस तरह उसे एक इंजेक्शन के ज़रिए दीवानगी में मुब्तला किया गया था और उसकी बेहोशी के दौरान पारस पर क्या गुजरती रही थी। मैंने कोड वर्ड्स के साथ पारस को मुखातिब किया। उसने कहा, यस पापा। मैंने कहा, जो बहुत कमज़ोर है, सुपर मास्टर उसके दिमाग में हर वक्त आ सकता है और उसे आला कार बनाकर हमारी परेशानियों में इजाफा कर सकता है। यही परेशानी मुझे भी है पापा। मैं उसे जल्द से जल्द बाबा साहब के इदारे में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फ़िलहाल तुम पाशा और दूसरे वफादारों के साथ एक कॉटेज में जाओ। पापा, यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है? सुपर मास्टर जो के दिमाग में रहकर मालूम कर लेगा कि वो दूसरी जगह कहाँ है। हमला यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है। फ़र्क है बेटे, ये अड्डा बदनाम है। सुपर मास्टर यहाँ कानून की मदद से हमला कर सकता है। किसी कॉटेज वगैरह पर सिर्फ उसके आला कार ही हमला कर सकते हैं। उनसे हमारे वफादार निमट लेंगे। उसी वक्त माइटी पाशा ने वहाँ पहुँचकर कहा, पारस बाबा, आपके पापा ने। पारस ने बात काट कर कहा, दूसरी जगह हमारी रिहाइश का इंतज़ाम किया है। वो झीम कर बोला, मैं भूल गया था, टेलीपैथी मुझसे पहले आपके पास पहुँच सकती है। मिस्टर पाशा, मुझे ये बताएं, हम यहाँ से किस तरह दूसरी जगह जाएंगे? आप अपनी शरीके हयात के साथ एक वैगन कार में बैठेंगे, हमारी गाड़ियाँ आपके आगे पीछे होंगी। पारस ने सोच के ज़रिए कहा, पापा इसे समझाइए, यहाँ से इसका एक आदमी ज़नाना लिबास पहनकर उस वैगन कार में बैठेगा, दूसरा आदमी मेरा लिबास पहनकर उसके साथ जाएगा। उनके जाने के बाद मैं जो के साथ तन्हा किसी गाड़ी में जाऊँगा। मैंने कहा, प्लानिंग अच्छी है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि सुपर मास्टर जो के पास रहकर तुम्हारे फ्रॉड को समझ लेगा। वो नहीं समझ पाएगा। आप जो के दिमाग पर कब्जा जमा कर रहें, उसके दिमाग को लॉक रखें। क्या यह आइडिया मेरा गलत है या सही? वंडरफुल आइडिया। मैं भूल गया था कि मैं उसके दिमाग को कुछ देर तक लॉक किए रख सकता हूँ। क्या सुपर मास्टर पाशा के दूसरे आदमियों को ट्रैप कर सकता है? नहीं, वो सब बॉडी बिल्डर हैं। वो सोच की लहरों को दिमाग में जगह नहीं देंगे। मैंने पाशा को समझाया कि अब पारस और जो की जगह उनके लिबास में उसके 2 आदमी जाएंगे। उसके हुक्म पर उसके एक आदमी ने जनाना लिबास पहना, दूसरे ने पारस का लिबास पहन लिया। मैंने जो के दिमाग में आकर एक साथ के लिए उसकी सांस रोकी, ताकि सुपर मास्टर छुपा हो तो सांस रोकते ही निकल जाए। फिर मैंने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। अब सुपर मास्टर जो के पास जगह ना मिलने से यही सोचेगा कि हम उसके दिमाग को लॉक करके पारस के साथ किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। इन हालात में उसे अपने उन आदमियों पर तकिया करना पड़ेगा जो अड्डे के बाहर निगरानी में मसरूफ़ होंगे।
थोड़ी देर बाद यही हुआ। पाशा और दूसरे वफादार उस वैगन को अपने घेरे में लेकर अड्डे से चले गए। निगरानी करने वालों ने उस वैगन में एक औरत और एक मर्द को बैठते देखा। सुपरमास्टर ने जो बहुत पहले जोजो के जरिए उसके और पारस के लिबास को देखा था, उसने अपने आदमियों को उनके लिबास का रंग और डिज़ाइन समझा दिया था। फिर वो धोखा कैसे न खाते। जैसे ही वो गाड़ियां अड्डे से निकलकर थोड़ी दूर गईं, उन पर फायरिंग शुरू हो गई। माइटी पाशा पूरी तैयारियों के साथ आया था। उसके आदमी जवाबी फायरिंग करते हुए गाड़ियां तेज रफ्तारी से निकाल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोशिश दुश्मनों को और यकीन दिला रही थी कि पारस और जोजो उसी वैगन में मौजूद हैं। वो जिस रास्ते से गुजर रहे थे, वहां के लोग रास्ता छोड़कर भाग रहे थे। दूसरी गाड़ियों वाले अपनी समतें बदल रहे थे। दुश्मनों को इस बात की परवाह नहीं थी कि वहां दहशत फैलेगी। वो किसी भी तरह जोजो और पारस को हलाक कर देना चाहते थे। उन्हें इससे अच्छा मौका फिर शायद मुश्किल ही से मिलता। दुश्मनों की एक गाड़ी का पहिया बर्स्ट हो गया था। ड्राइवर उसे काबू में ना रख सका। वो गाड़ी तेजी से घूमकर एक दुकान के दरवाजे को तोड़ती हुई अंदर घुस गई। पाशा की भी एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। वो सामने से आने वाली गाड़ी से टकराकर दूसरी तरफ घूम गई। इसके बावजूद दोनों तरफ से फायरिंग जारी थी। गाड़ियां तेजी से आगे पीछे दौड़ती जा रही थीं। कॉटेज पहुंचने से पहले ही पुलिस की गाड़ियां आ गई थीं। वो दूर ही दूर से उन्हें ललकार रही थीं। मेगाफोन के जरिए उन्हें वार्निंग दी जा रही थी कि फायरिंग बंद ना की और उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले ना किया तो दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। माइटी पाशा अपनी गाड़ी में लगे हुए लाउड स्पीकर से कह रहा था, मैं माइटी पाशा कानून का एहतराम करता हूँ। ये नामालूम दहशतगर्द ना जाने क्यों मुझे और मेरे आदमियों को मार डालना चाहते हैं। मैं दुहाई दे रहा हूँ, कानून के मुहाफिज इन दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश करें। जो गुंडे पाशा वगैरह का ताकुब कर रहे थे, वो इतने दिलेर नहीं हो सकते थे कि पुलिस की आमद पर फायरिंग और ताकुब जारी रखें। सुपरमास्टर उनके दिमागों में जाकर उन्हें मजबूर कर रहा था। जब उसने देखा कि ये मौका उसके हाथ से निकल रहा है, तो उसने एक आलाए कार से कहा, एक हैंड ग्रेनेड तैयार रखो, मैं अभी तुम्हारे पास वापस आऊँगा। वो उसके दिमाग से निकलकर उसी गाड़ी के ड्राइवर के दिमाग पर काबिज हो गया। बड़ी खतरनाक हद तक रफ्तार बढ़ाते हुए उस वैगन के करीब ले जाने लगा, जिसमें उसे यकीन था कि पारस और जोजो मौजूद हैं। करीब पहुंचते ही उसने ड्राइवर के दिमाग से निकलकर पीछे बैठे हुए शख्स के दिमाग पर कब्जा जमाया। हैंड ग्रेनेड उसके मुंह के पास ले जाकर उसकी चाबी निकाली। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक गिनकर हैंड ग्रेनेड को उस वैगन के अंदर फेंक दिया। 4 सेकंड के अंदर ही जबरदस्त धमाका हुआ। वैगन के कुछ टुकड़े फजा में उड़े और इंसानी चीखें सुनाई दीं। आगे पीछे जाने वाली गाड़ियां इधर उधर होकर रुक गईं। अब ना किसी को भागने की जरूरत थी और ना कोई ताकुब करना चाहता था। वो अपनी दानिश में पारस और जोजो को हलाक कर चुके थे। मुसल्ला सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सब ने हथियार फेंक दिए। माइटी पाशा ने कहा, मुझ पर जुल्म हुआ है। इन शैतानों ने मेरी वैगन में बैठे हुए लोगों को हलाक कर दिया है। मेरे साथ इंसाफ किया जाए, इनसे पूछा जाए कि आखिर ये कौन लोग हैं। पुलिस अफसरान ने कहा, तुम सब थाने चलो, वहां तुम्हारा बयान लिया जाएगा। वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने लगा। ऐसे ही वक्त मुझे पराई सोच की लहर महसूस हुई। मैंने पूछा, कौन है? सुपरमास्टर की आवाज़ सुनाई दी, तुम मक्कारी में शैतान के भी बाप हो। अभी मैंने तुम्हारा बाप बनने का दावा नहीं किया है, काम की बात करो। मैंने सोचा था हैंड ग्रेनेड के धमाके से जोजो और पारस या तो हलाक होंगे या फिर जख्मी होंगे, मुझे दिमाग में जगह मिल जाएगी। लेकिन मेरे पहुंचते ही पारस ने सांस रोक ली। ये कैसे मुमकिन है कि पूरी वैगन धमाके से उड़ गई हो और तुम्हारा बेटा जख्मी होकर दिमागी तौर पर कमज़ोर ना हुआ हो? आगे बोलो। मैंने जोजो के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की। उसका दिमाग पहले की तरह लॉक है। अगर वो भी जख्मी होती तो मेरा रास्ता साफ होता। मर चुकी होती तो उसके मुकफ्फल दिमाग का पता ना चलता। तुमने इस वैगन में डमी जोजो और पारस को भेजा था। मैंने क्या किया था और क्या कर रहा हूँ ये तुम्हें रफ्ता रफ्ता मालूम हो जाएगा। वैसे तुम हद से बढ़ गए हो। आज तुमने मेरे बेटे और बहू को हलाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब मेरी इंतकामी कार्रवाई कितनी भयानक होगी ये तुम्हें थोड़ी देर बाद मालूम हो जाएगा। नाउ गेट आउट। वो शायद कुछ और कहना चाहता था। मैंने सांस रोक ली। वो बाहर निकल गया। मैं एक बॉडी बिल्डर के पास पहुंचा। वो सब थाने में थे। सुपरमास्टर के जिन आदमियों ने ताकुब किया था वो बयान दे रहे थे, जनाब, हम फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी से मजबूर थे।
वो हमारे दिमागों में आकर हमें इनका ताक़ुब करने और फायरिंग करने पर मजबूर कर रहा था। माइटी पाशा ने पुलिस ऑफिसर से कहा, जनाब ये सरासर झूठ है, ये लोग सुपर मास्टर के गुंडे हैं। सुपर मास्टर टेलीपैथी जानता है मगर खुद को जाहिर नहीं करता। फरहाद साहब के नाम से ऐसी ऐसी वारदात करके उन्हें बदनाम करना चाहता है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, क्या मिस्टर फरहाद तुम्हारे बयान की तस्दीक कर सकते हैं? मैंने बॉडी बिल्डर की ज़ुबान से कहा, जी हाँ, मैं फरहाद अली तैमूर इस शख्स की ज़ुबान से बोल रहा हूँ। अफसर ने ताज्जुब से बॉडी बिल्डर को देखा, फिर कहा, यह तो खेल तमाशा लगता है, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मिस्टर फरहाद बोल रहे हैं? मैंने कहा, आपकी कैप मेज़ पर रखी है और आप कुर्सी पर बैठे हैं। पुख्ता इरादा कर लें कि कैप सर पर नहीं रखेंगे और कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके दिमाग में आकर आपके इरादे के खिलाफ ऐसा करवाऊंगा। अच्छी बात है, मैं पुख्ता इरादा करता हूँ। उसकी बात ख़त्म होते ही मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उसने कैप उठाकर सर पर रखी, फिर कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। उसने ताज्जुब से खुद को देखा, फिर कुर्सी पर नज़र डाली। उसके बाद मेज़ पर कैप नज़र नहीं आई। उसने जल्दी से सर पर हाथ रखा, फिर कहा, कमाल है, मुझे बस यूं लगा जैसे मैं चंद सातों के लिए कुछ गुमसा हो गया था। अब देख रहा हूँ अपने इरादे के खिलाफ कुर्सी छोड़ चुका हूँ और मेरी कैप मेरे सर पर है। मैंने कहा, आप यकीन कर लें कि फरहाद आपके दिमाग में बोल रहा है। मिस्टर फरहाद, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अपने दिमाग में आपकी आवाज़ अजीब सी लग रही है। अब आप यकीन करें कि सुपर मास्टर भी टेलीपैथी जानता है और मेरे नाम से इन गुंडों को ट्रैप करता रहा है। बेशक मुझे यकीन करना चाहिए, इन गुंडों की ज़्यादती भी है। उन्होंने माइटी पाशा की वैगन बर्बाद की और उसमें बैठे हुए ड्राइवर समेत 3 अफराद को हलाक किया है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप माइटी पाशा और मेरे तमाम वफादारों को रिहा कर देंगे? मैं उनके तहरीरी बयानात लेकर जाने की इजाज़त दूंगा। बाय द वे, सुपर मास्टर आपका दुश्मन क्यों है? ये बैनुल अक़वामी तर्ज की दुश्मनी है। तमाम बड़े ममालिक के हुक्मरानों को ये सोचकर नींद नहीं आती कि मैं टेलीपैथी के ज़रिए किसी वक्त भी किसी मुल्क को भी तबाह कर सकता हूँ, या शायद उनके दिमागों में पहुँचकर एक मुल्क के राज मालूम करता हूँ और दूसरे मुल्क तक पहुँचा देता हूँ। मेरी ख्याल ख्वानी को बरसों गुजर चुके हैं, लेकिन ना तो मैंने किसी मुल्क को तबाह किया और ना ही किसी ने यह साबित किया है कि मैं किसी मुल्क के अहम राज चुराया करता हूँ। अफसर ने पूछा, वैगन में हलाक होने वाले कौन थे? बेचारे मेरे बेटे और बहू पर कुर्बान हो गए। किराए के लोग थे। मैं इन कुर्बानी देने वालों के पसमानदगान को आराम से ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी बड़ी रकमें दूंगा। मरने वालों के लिए अफसोस जाहिर करूंगा। मुझे वाकई उनके लिए अफसोस है। मैंने थोड़ी देर तक उससे बातें की, फिर सुपर मास्टर के मुल्क के एक सरबराह के पास पहुंच गया। उसने परेशान होकर कहा, मिस्टर फरहाद, आपने कभी मेरे पास आने की जहमत नहीं की। आज क्या बात है? आज ख़ास बात है। आप जानते हैं मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ। अगर होता तो आपके मुल्क के अहम राज मेरे सीने में दफन ना रहते, ये दूसरी सुपर ताकत तक पहुँच जाते। बेशक किसी भी मुल्क का राज एक टेलीपैथी जानने वाले के लिए राज नहीं रहता। आप तमाम ममालिक के राज जानते हैं, मगर किसी के खिलाफ किसी की मदद नहीं करते। मैं सिर्फ आपके मुल्क की बात कर रहा हूँ। मैं तस्लीम करता हूँ आपने मेरे मुल्क को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, अब पहुँचाऊँगा। वो चौंक कर बोला, क्या आप संजीदा हैं? मेरा आपसे मजाक का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप अचानक ही हमारे खिलाफ क्यों हो गए? क्या मास्क मैन से कोई बड़ा सौदा तय हो गया है? मैंने पूछा। कोई भी सौदा कितना बड़ा हो सकता है? कोई मुझे कितनी दौलत दे सकता है, जबकि मैं एक दिन में सारी दुनिया की दौलत जबरन हासिल कर सकता हूँ। जो जबर करने की ताकत रखता है वो किसी से सौदा नहीं करता। फिर आप नुकसान क्यों पहुँचाना चाहते हैं? मैं इसका जवाब भी दूंगा। पहले आप अपनी हुकूमत के तमाम ओहदेदारों और मशीरों को 1 घंटे के अंदर हंगामी इजलास के लिए तलब करें। मैं ठीक 1 घंटे बाद आऊँगा। अगर हंगामी इजलास ना हुआ तो मैं वजह बताए बगैर इस मुल्क में ऐसी तबाही लाऊंगा कि आप बरसों तक अपना नुकसान पूरा नहीं कर सकेंगे। सो फार। मैं उसके दिमाग से चला आया। माइटी पाशा के मातहत के दिमाग में पहुंचा। पाशा और दूसरे वफादार थाने से बाहर आ गए थे। उस कॉटेज में दाखिल होते हुए बातें कर रहे थे। एक ने कहा, हमने जान की बाजी लगा दी, दुश्मनों की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। फरहाद साहब ने थाने पहुंचकर हमारी तरफ से सफाई पेश कर दी। उनके पास गज़ब का इल्म है, सभी मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन इतनी भाग दौड़ का फ़ायदा क्या हुआ?
वो बड़े से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। माइटी पाशा ने कहा, इस वैगन में मेरे 3 आदमी मारे गए। उनका अफसोस नहीं है, सब के सब मरने या मारने वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर वाकई इतनी भाग दौड़ का कोई फ़ायदा ना हुआ। बात जहाँ थी वहीं रह गई। उनके बेटे और बहू इस महफूज पनाहगाह तक ना आ सके, मेरे अड्डे में ही रह गए। पारस ने एक कमरे से निकलकर कहा, हम आ गए हैं। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।